हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षिता परमार। आज हम डेटा साइंस का टेस्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट प्रॉब्लम्स दैट मे हैव फाउंड इनटू द फॉलोइंग डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है वो हमको फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। कंसिडर अ टीनी डेटा सेट वेयर सम टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कुड occurs. Can you find any problems in this data set? Let us discuss attributes by attributes. Some of the problems that have found in their way into the data set. First, customer ID variable is to be a find. Attributes of zip. Here we are accepting all the customers in the database to have a casual 5 numerical US zip code. Customer 1001 is okay. Now customer 1002 has a zip code of Z2S7K7. Usual value may be an occur and toss it out. Not all countries use the sample zip. Actually this is a zip code of ST Canada, and so probably represent real data from a real customer. The customer 1003 is okay. Now for customer 1004 we are unaware for any countries that we have 4-digit zip codes such as 6269 indicates here. So this zip code of a New Zealand states begin with the numeral 0 unless the zip code filled in the undefined the character text and an n, which is apparently what happened here. The zip code is probably 06269 which refers to stores. So attributes of z यहाँ पे 4 नंबर्स का फोर्स नंबर का जिप दे रखा है, बट एक्चुअली यहाँ पे 5 नंबर्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे आगे 0 लग जाएगा, तो 06260 हमारा जिप हो जाएगा। फिर आता है जेंडर के एट्रीब्यूट्स। जो जेंडर एट्रीब्यूट्स कंटेन अ मिसिंग वैल्यू फॉर कस्टमर 1003। यहाँ पे जेंडर दे रखा है, पर यहाँ पे 1003 के जेंडर के एट्रीब्यूट्स में मिसिंग है, तो यहाँ पे अपन को जेंडर मिसिंग है। फर्स्ट फिर है इनकम फील्ड इज अ मेजरिंग एनुअल ग्रोस इनकम हैज अ 3% potentially annual values. Customer 103 income of 10 lakh dollar per year possible, especially when the consider the customer zip code 90210. Beverly Hills, the value of income is nevertheless and the outlets and the extreme data values. Certain specify the data mining modeling techniques do not function smoothly in the presence of outliers. Poverty is one thing, but it is a rare to find an income that is negative as pure as customer 1004 has. Customer 1004 reported income is a minus value, lies between beyond the fields bounds for income, and therefore must be an error. It is unclear how the error crept in, with perhaps the most likely explanation being that the negative sign in a straight data entry error. However, we cannot be sure and should approach this appending to communicate with the database managers. Now customer 1005 incomes have $999. Perhaps it has fact be valid, but if all the other incomes are rounded to the nearest codes of annuals entire such as missing values, perhaps 999 was coded in all database at meaning missing. Finally, are we clear as to which unit of measure the income variable is measuring? Database often get merged sometimes without. For example, in a quite possible that customer 1002 with the zip code and an income measure in the Canadian dollars, not US. The age field has a couple of problems. Also, all the other customers have numerical values of age. Customer 1001 age of C probably reflects an earlier categorizations of the mean age into a bin label C. The data mining software problem shows customer 1004 age of 0. Perhaps this is a newborn male stores
and which have the transactions dollar more the edge perhaps probably missing and a coded as a zero indicate the sometime conditions. Marital status field is the same right may not be. The problem lies in the meaning behind the symbols. We have know that the symbols mean but were sometimes surprise. For example, cold water in a rest turn the foreign market is C. Since the C stands for clown, which is a French for hurt, this is also problem ability. In the about table does as for customer 103 and 1004 stand for single or separated. Transactions, the transaction amount feels necessary as long as we are confident that we know that the ultimate result is a being used and that all records are transcribed in this unit. तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रॉब्लम्स थे. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई डेटा वैंगलिंग प्रोसेस इन द फॉलोइंग डेटाबेस. यहाँ पे ये फॉलोइंग डेटाबेस है, हमें यहाँ पे डेटा वैंगलिंग लगानी है. चलो देखते हैं. ये हमारे पास डेटा दे रखा है, नेम, फ़ोन, बर्थ डेट एंड स्टेट. यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है, तो जगदीश सिंह, जैन तिलक. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट नेम फर्स्ट है और फर्स्ट नेम लास्ट में आ गया. यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे गुप्ता विनोद हो गया. यहाँ पे फ़ोन नंबर एक भी स्पेसिफिक नहीं है. यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट्स अलग अलग है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है. तो यही हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी. ठीक है. डेटा वैंगलिंग प्रोसेस, ऑल नेम्स आर ना फॉर्मेट द फर्स्ट वे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. वही जो नेम है वो फॉर्मेट में होना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. टेक फोन नंबर्स आर ऑल्सो फॉर्मेट द सेम वे, एरिया कोड ABCXS. एक ही फॉर्मेट में सारे फ़ोन नंबर्स होने चाहिए. डेट्स आर फॉर्मेटेड न्यूमेरिकली. फर्स्ट डेट में आएगा YYYMMDD, इसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है. स्टेट आर नॉट एप्लीकेट. द एंट्री ऑफ Jackie Agrawal did not have fully formed data. The area code on the phone number is missing on the date of birth, had no error. So it is described the data set. Now the resulting data set is clean and the evaluations. So तो ये नेम हो जाएगा जगदीश सिंह, तिलक, जैन, विनोद गुप्ता, अरुण फैक्रिया. फिर फ़ोन नंबर इसी फॉर्मेट हो जाएंगे सारे और डेट ऑफ बर्थ भी YYMMDD में अपन को सारी लिखना है. और यहाँ पे स्टेट में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा. यहाँ पे तमिलनाडु आ जाए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और आसाम आ जाएगा. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा अब देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, अप्लाई एनी 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज़. अब यहाँ पर हमको मिसिंग वैल्यूज़ दे रखी है, तो 3 मेथड्स, कोई सी भी 3 मेथड से हमें कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे. फर्स्ट, रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड्स वैल्यूज़ विद रैंडम डॉट्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल से हम जब डेटा फाइंड करेंगे तो हमारा क्यूबिक इंचेस 450 आएगा और ब्रांड हमारी जापान आएगी. ठीक. इन सब का जो भी ज़्यादा दिखता है वो अपन लिख देते हैं. रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड्स विथ यूज़र डिफाइंड कांस्टेंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे मिसिंग आ जाएगा. रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड वैल्यूज़ विथ मीन्स एंड मोड्स, तो इनका मीन और मोड निकालेंगे तो ये 200.67 आ जाएगा और यहाँ पे US आ जाएगा. ठीक. सो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्लासीफाई बैंक लोन एप्लीकेशन बाय असाइनिंग एप्लीकेशन टू वन ऑफ द 3 रिस्क क्लास. एंट्रोपी, यूज एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन अप्रोच, और इसी का ही हमको डिसीजन ट्री बनाना है गिनी इंडेक्स एंड इंफॉर्मेशन गेन अप्रोच से. तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे. Decision tree using the information measure used in R4.5. Using the information measure, the training data sample 1 to classify bank loan application by assigning application to one of the 3 risk class. तो ये own home, married, gender, employer, credit rating, risk class, ये हमें अपना पूरा डेटा दे रखा है. The number of examples ये पूरा 10 है. Number of classes हमारी 3 है.
फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास A 3, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास B 3, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास C इक्वल टू 4 दे रखी। ओवरऑल इंफॉर्मेशन इन द गिवन डेटा ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम रिगार्डिंग द रिस्क क्लास ईच पर्सन बिलोंग्स टू तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें अपन सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1.57 आएगा। ठीक, फिर लेट अस कंसिडर यूजिंग द ईच एट्रीब्यूट्स इन टर्न एज द कैंडिडेट टू स्लिप द एग्जाम्पल। ये एट्रीब्यूट 1 ओन्स होम, एट्रीब्यूट 2 मेरिट एंड एट्रीब्यूट 3 जेंडर। ठीक, द वैल्यूज वाई दे आर 5 एप्लीकेशन हुज ओन्स होम, दे आर इन क्लासेस। ओन्स होम में कितनी 3 क्लासेस दे रखी है, तो यहाँ पे A1 है, B2 है और C2 है। ठीक, फिर वैल्यूज एंड देयर आर 5 एप्लीकेशन हु डू नॉट ओन्स अ होम, दे आर इन अ क्लास 2 1 एंड 2। यस वाले हैं जिनके पास ओन्स होम है और नो वाले जिनके पास अपना होम नहीं है। ठीक, ऐसे ही मेरिट का देखना है, देयर आर 5 एप्लीकेंट्स हु आर मैरिड। यहाँ पे देखना है कि कितने यस है वो मैरिड है, जितने नो है वो अनमैरिड है। तो 5 एप्लीकेशन हो जाएंगे, A के 0, B के 1, C के 4 हो जाएंगे क्लासेस। और दे आर 5 एप्लीकेंट्स हु आर नॉट मैरिड, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 0। वैसे ही एट्रीब्यूट 3 जेंडर वाई देयर आर 3 एप्लीकेंट्स हु आर मेल। यहाँ पे जेंडर में देखना है कि बस 3 एप्लीकेंट्स है जो मेल है, बाकी सारी फीमेल्स है। उसमें से भी A इक्वल टू 0, क्लासेस से A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 0। और 7 एप्लीकेंट्स है, दे आर फीमेल्स, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ द 2 सब ट्रीज 1.52, इसका आंसर आएगा 0.846 और इसका आंसर आएगा 0.69। तो एट्रीब्यूट 4 है हमारा एम्प्लॉय और एट्रीब्यूट 5 है हमारा क्रेडिट रेटिंग। तो वैल्यू ऑफ वाई, देयर आर 8 एप्लीकेंट्स हु आर मेल, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 4। एंड वैल्यू एंड देयर आर 2 एप्लीकेंट्स हु आर फीमेल, दे आर इन क्लासेस 0, 2 एंड 0। ऐसे ही इसको अब पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.12। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, दे आर 5 एप्लीकेंट्स, दे हैव रेटिंग 1, दे आर इन क्लासेस 2 1 2 एंड दे 5 एप्लीकेंट्स हु आर रेटिंग B, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 2। इसका वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.52 मिल। तो पोटेंशियल स्प्लिट एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन बिफोर स्प्लिट, इंफॉर्मेशन आफ्टर स्प्लिट, इंफॉर्मेशन गेन। तो ओन्स हाउस का ये 1.57, 1.52 एंड 0.05। ऐसे ही मेरिट का निकाला, जेंडर, एम्प्लॉय एंड क्रेडिट रेटिंग। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू दिख रही है इंफॉर्मेशन वेंट 0.65। तो now we reduce the data by removing the attribute gender and removing of class B since all the class B have gender equal to male। तो जितनी भी classes B है उसका gender हो जाएगा male। now we reduce, तो ये हमारा now we reduce the removing the attribute gender and removing the class B since all the वो ये हो गया। ठीक है, फिर जितने भी मेल वाले थे जेंडर, जिनका भी क्लास बी में मेल जेंडर था उनको रिमूव कर देना है। तो ये हमारी न्यू टेबल हो गई, ओन हाउस, मैरिड, एम्प्लॉय, क्रेडिट एंड रिस्क क्लास। नाउ वी कंसिडर ईच एट्रीब्यूट्स इन टर्न एज कैंडिडेट टू स्लीप द एग्जाम्पल। ये ओन हाउस मैरिड का है, फिर 3 एप्लीकेंट्स हु ऑन ओन हाउस, A इक्वल टू 1, B C इक्वल टू 2, B को हमने रिमूव कर दिया है। एंड दे आर 4 एप्लीकेंट हु डू नॉट ऑन हाउस, जिनका खुद का घर नहीं है, वो A इक्वल टू 2 है और C इक्वल टू 2 है। ना 4 एप्लीकेंट्स हु आर मैरिड, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 4 एंड 5 एप्लीकेंट्स हु आर नॉट मैरिड, दे आर इन क्लासेस A इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1.00 एंड 0.0।
static. There are no need to consider the other attributes now because of no other attributes can be better. The sleep attributes merit. We will be used to split everything. The rule, if gender equal to male then class B and merit equal to yes then class C. एल्स क्लास सी ये जेंडर है, इसमें मेल एंड फीमेल 2 एट्रीब्यूट्स है. मेल सारे क्लास बी वाले इनकी क्लासेस होगी एंड फीमेल में मैरिड होंगे. तो क्लास सी में यस है और क्लास ए में नो है. तो ये हमारा डिसीजन ट्री हो गया है. नाउ ये हमारी टेबल्स दे रखी है. एग्जाम्पल वही एस इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ क्लासेस 3 है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास ए 3 है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास बी 3 है एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सी 4 है. ऐसे ही हमको सारे एट्रीब्यूट्स देखने हैं. ऑन होम्स, मैरिड, जेंडर, एम्प्लॉय एंड क्रेडिट रेटिंग. फर्स्ट है हमारा ओन्स हाउस, किसके पास खुद के घर है. तो 5 एप्लीकेंट्स हैं जिनके खुद के हाउस है, उनकी क्लासेस ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 2. 5 applicants who do not their own homes, they are in classes A equal to 2, B equal to 1 and C equal to 2. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका गिनी इंडेक्स आएगा 0.64. एट्रीब्यूट टू मैरिड, 5 एप्लीकेंट्स है जो मैरिड नहीं है, उसकी क्लासेस A equal to 0, B equal to 1 and C equal to 4. There are 5 applicants who do not married, they are in classes A equal to 3, B equal to 2 and C equal to 0. जब इसका गिनी इंडेक्स निकालेंगे तो 0.40 आएगा. फॉर्मूले में पुट करके हमें गिनी इंडेक्स निकालना है सारे एट्रीब्यूट्स का. ये जेंडर है, इसके 3 एप्लीकेंट्स है हु आर मेल, दे आर इन क्लासेस A equal to 0, B equal to 3 and C equal to 0. There are 7 applicants who are female, they are in classes A equal to 3, B equal to 0, C equal to 4. इसका गिनी इंडेक्स निकालेंगे फॉर्मूले में पुट करके तो इसका आंसर आएगा 0.358. एम्प्लॉय, there are 8 applicants which are males, they are in classes A equal to 3, B equal to 1 and C equal to 4, and 2 applicants which are female, they are in classes A equal to 0, B equal to 2 and C equal to 0. 5 applicants which are rating A, they are in classes A equal to 2, B equal to 1 and C equal to 2. 5 applicants who are rating B, they are in classes equal to 1, B equal to 2 and C equal to 2. गिनी इंडेक्स निकालेंगे एम्प्लॉय का तो इसका आंसर आएगा 0.475 और गिनी इंडेक्स क्रेडिट रेटिंग का निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.64. एट्रीब्यूट्स का गिनी इंडेक्स है, एट्रीब्यूट्स ही हमारी दे रखी ओन हाउस, मैरिड, जेंडर, एम्प्लॉय, क्रेडिटेड. रेटिंग इसका गिनी इंडेक्स होगा बिफोर स्प्लिटिंग और आफ्टर स्प्लिटिंग और ये इंफॉर्मेशन गेन है. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है जेंडर की. So the rule gender equal to male then class B and the married equal to yes, the class equal to C. तो gender फीमेल एंड मेल, जब मेल होगा तो क्लास बी होगी, फीमेल होगी तो मैरिड, नॉट, यस एंड नो. तो मैरिड क्लास इक्वल टू यस एंड मैरिड क्लास ए इक्वल टू नो. तो ये हमारा डिसीजन ट्री था, ये हमारा टेस्ट 2 था. नाउ JRV कंप्लीट. थैंक यू.